Hello students, today in this video we will do the review worksheet 1. In this review worksheet you will get the questions from all the previous exercise which you had solved earlier. So first 11 questions are very easy and you had already solved in the previous exercise. So question number 1 to 11 you have to do by yourself. This is the review worksheet, that means revision work only you are getting here. From question number 12, I will give you the questions which are difficult, in which students are facing problem. So I will start from question number 12. All of you see question number 12, A part. Question is, you have to write the greatest and the smallest number with the given digits. आपको greatest number भी लिखना है और smallest number भी लिखना है, and you have to use the digits. Which digits? 7, 9, 2, 5, 8, 1. These are the digits. We have to use these digits and we have to make smallest and largest number. So in order to make the smallest number, we have to put the smallest value in the beginning. Smallest value कौन सी है इनमें? 1, then 2, then 5, 7, 8, 9. So this is the smallest number which we can make with the help of these digits. Now no need to put the comma sign. इसमें comma signs put नहीं करने हैं आपको. ये तो digits given थी, but these are not the digits. We are making a number. एक number बना रहे हैं. That's why no need to put a comma. In the same way, we have to make largest. For largest, what we have to do? We have to put the largest number first. 9. Then 8, 7, 5, 2, 1. This is the answer of A part. Now see B part. B part digits are given 8, 0, 6, 2, 6, 4 and 3. We have to make smallest and we have to make largest also. So here you will observe 6 is coming 2 times, तो आपको भी 2 बार लेना है. स्मॉलेस्ट लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर लिखेंगे. बट रिमेंबर दैट नेवर यू विल राइट 0 इन द बिगनिंग. अगर आप 0 शुरू में रख देंगे तो वो 0 जो है स्टार्टिंग में काउंट नहीं होता है. तो आपको क्या करना है? 0 आपको सेकंड प्लेस पे लेना है. तो सेकंड प्लेस पे 0 लेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे क्या लेंगे? 2 ले लो. देन 0, 3, 4, 6, 2 times it is coming, so we will write 2 times, then 8. So this is the smallest number. Now we have to write largest. तो largest में सबसे बड़ा रखेंगे आप. सबसे बड़ा है 8, 6, 2 times, 4, 3, then 2 and 0. 0 we can write in the end. 0 आप लास्ट में लिख सकते हो क्योंकि लास्ट वाली 0 काउंट होगी. बट अगर आप स्टार्टिंग में 0 लिखेंगे तो वो काउंट नहीं होगी. सो आप 0 को फर्स्ट प्लेस पे ना रख करके कहाँ रखेंगे? सेकंड प्लेस में रखेंगे जब आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे. लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16. दीज आर सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस. ये सिंपल क्वेश्चन है. मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने हैं. दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 A part. 7,823 minus 128 divide 16 of 4 minus 3973. This is the question, and here in this question you will observe so many mathematical signs are coming: minus, divide, of. So here in such questions you have to use BODMAS. BODMAS use करेंगे. B for bracket. Bracket is not there in the question. Now next one O. O stands for off, और off का मतलब होता है multiply. Off कहाँ है? Here off is coming. So first of all इन दोनों को आपको क्या करना है? Multiply करना है. बाकी वर्क as it is note कर देना है. Rest of the work we will not solve. इसको बचे हुए वर्क को as it is लिख देना है.
और इन दोनों को ऑफ ऑफ में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 4 वी विल डू, वी विल गेट 64। नाउ ऑफ इज ओवर, ऑफ के बाद क्या आता है, डिवाइड। सो डिवाइड इज कमिंग हेयर, तो आप क्या करेंगे, 7 8 2 3 सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज लिख दें, माइनस भी लिख दें, ये माइनस भी लिख दें, 3 9 7, और इन दोनों को आपस में क्या कर लें, डिवाइड कर लें। ऑन डिवाइडिंग दीज टू वी विल गेट 2, इनको डिवाइड करके क्या आ जाएगा 2। नाउ 7823 माइनस 2 वी विल डू, वी विल गेट 7821। दिस नंबर वी हैव टू राइट एज इट इज। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 7821 3973, इनको माइनस करें, we will get 3848. So this is the answer of A part. Now see part number C. C part देखें। C part is 89 minus curl bracket 25 into 39 divide 85 minus 70 bracket. So here also we have to use BODMAS, but here two types of bracket are coming, curl bracket and small. तो आपको पहले कौन सी करनी है, स्मॉल ब्रैकेट, देन वी विल डू कर्ल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ भी है और यहाँ भी है, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करके आंसर लिखिए, रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल नॉट डू। तो 25 इंटू 39 करेंगे, आंसर विल बी 975। डिवाइड ऐसे ही लगाएं, इन दोनों को आप आपस में क्या करेंगे, माइनस, देन वी विल गेट 15। नाउ दीज टू ब्रैकेट्स आर सॉल्व्ड, कर्ल ब्रैकेट, ये वाली कर्ल ब्रैकेट, 89 माइनस एज इट इज लिखते हैं। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 975 को डिवाइड करना है 15 से, 15 टेबल वी विल रीड, 15 6 जा 90, माइनस करके रिमाइंडर 7, दिस 5 वी विल कम डाउन, 15 5 जा 75। तो आंसर आ रहा है सॉल्व करके डिवाइड करके 65। सो हेयर ऑन डिवाइडिंग इट वी विल गेट हाउ मच, 65। 89 वी हैव टू राइट एज इट इज, माइनस भी ऐसे लगाएंगे। नाउ इन दोनों को आप आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 9 minus 5 4, 8 minus 6 2. So final answer of this C part is 24. So like this you have to do question number 17 C part. Now question number 18. 18th question is, Joy bought a boat for rupees 5,23,900. Bought means खरीदी है। So जो प्राइस खरीदने का होता है उसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ बोट। हाउ मच रुपीज, 5,23,900 रुपीज, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, खरीदी है। एंड देन सोल्ड इट, फिर उसके बाद बेच दी, तो बेचने वाली प्राइस क्या कहलाती है, सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ बोट। फॉर हाउ मच मनी ही हैड सोल्ड, कितने की बेची, 5,32,500। परचेज करी है इतने रुपीस की और बेची है इतने रुपीस की। आप देखेंगे तो एसपी जो है वो क्या है, बड़ी है, लार्जर वैल्यू है, ज़्यादा की क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो जब भी हम कोई चीज़ ज़्यादा की बेचते हैं तो हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। फ़ायदा मीन्स प्रॉफिट। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी वैल्यू इज 5,32,500 माइनस सीपी, सीपी वैल्यू इज दिस 5,23,900। अब आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 minus 9 नॉट पॉसिबल, तो 15 minus 9 करेंगे। 15 minus 9 विल बी 6, यहाँ हो जाएगा 11। 11 minus 3 विल बी 8।
2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, सो दिस मच रुपीज़। जब इनको माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 8600 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, उसे कितना प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था 8600 रुपीज़ का। लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए डे। क्या बोला है, इन ए डे। ए डे मतलब 1 डे, तो 1 डे में कितने सेकेंड्स होते हैं वो आपसे पूछ रहा है। बट आप 1 डे में पहले लिखेंगे आवर्स। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। नाउ 1 आवर जो होता है वो क्या होता है, 60 मिनट होता है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 24 आवर्स में कितने होंगे, 1 आवर में 60 होते हैं, तो 24 आवर्स तो ज़्यादा है, तो मिनट भी कितने होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 60 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, आंसर आएगा इतने मिनट। तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 24 आवर्स में कितने हो गए, 1440 मिनट हो गए। अब आप लिखेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, बट हमारे कितने मिनट है, हमारे पास है 1440 मिनट। 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 1440 तो बहुत ज़्यादा है, तो सेकंड्स भी क्या होंगे, उसमें ज़्यादा होंगे। ज़्यादा के लिए क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये 60 की आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1440 से। लास्ट की 20 तो लास्ट में आ जाएंगी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 144 की 6 से, आंसर आएगा 864। तो आपका 1440 मिनट्स में कितने सेकंड्स आ गए, 86,400 सेकंड्स आ गए। तो 1 डे में इतने सेकंड्स होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20, ए पार्ट। क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो आप भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे आप। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखने के लिए आपको 6 टाइम्स 9 लिखना है। 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 लिखेंगे, तो ये आपका क्या बन गया है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया है। लेकिन आगे उसने बोला है दैट इज़ डिविजिबल बाय 156। लेकिन जो आप 6 डिजिट का नंबर लिख रहे हो वो 156 से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो हम भी चेक करते हैं, 156 से डिवाइड करके देखते हैं इस नंबर को, 99999। सो 156 5 जा 680 होता है। तो हम देखते हैं 156 6 जा कितना होता है, 936। दिस वन इज करेक्ट। सो 156 6 जा कर लेते हैं कितना, 936। इनको माइनस करेंगे, 9 - 6 3, 9 - 3 6, ऊपर से ले आते हैं 9, तो बन जाता है 639। 156 5 जा करा था तो 680 आ रहा था, अब 4 जा करते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 5 4 जा 20 and 2 22, 624। दिस इज करेक्ट। 156 4 जा 624, तो यहाँ लिख देते हैं 156 4 जा 624। इनको माइनस करेंगे, माइनस करते हैं इनको, 9 - 4 हो जाएगा 5, 3 - 2 हो जाएगा 1, 6 - 6 क्या होगा 0, ऊपर से ले लेते हैं 9 को, 156 1 जा 156, माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 3, ऊपर से ले लेते हैं 9 को, रिमेनिंग नंबर इज 9। 9 को ऊपर से ले आए, ये 9 को ऊपर से ले आए हैं, तो ये 39 बन गया है।
बट यू नो वेरी वेल 39 इसके टेबल में आता नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपने ऊपर से 9 भी ले लिया और इसका कुछ यूज़ ही नहीं हो पाया, ये तब भी क्या हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा, ये रिमाइंडर नहीं आया, दिस इज़ नॉट द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि हमने 9 कहाँ से लिया है, ऊपर से लिया है। तो आप क्या करेंगे, 156 जीरो जा कर लीजिए, 156 जीरो जा कितना होता है 0, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 39। अब आ गया है आपका फाइनल रिमाइंडर। ये रिमाइंडर नहीं था, 3 रिमाइंडर था, 9 इज़ नॉट ए रिमाइंडर, ये हम ऊपर से लाए थे। तो हमने क्या करा, 156 1 जा करते तो 156 तो बड़ा हो जाता, तो हमने क्या करा है 156 0 जा कर दिया, 156 0 जा कितना होता है 0, और रिमाइंडर आ गया 39। तो इसका मतलब है रिमाइंडर आ रहा है इसमें, रिमाइंडर आने का मतलब है ये जो है 156 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें से 999 इस नंबर में से जो रिमाइंडर है उसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें। 9 - 9 0, 9 - 3 6, 9999। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6। तो ये वो 6 डिजिट का नंबर है जो 156 से क्या है, डिविजिबल है। तो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी। सो नाउ this review worksheet is over. You all have to complete this review worksheet, and in case if you are having any doubt, then you can comment in the comment box. I will explain that doubts in the next video.